Hello everyone, welcome to Blaspur IS Academy, and in this particular lecture I will talk about the physical division of India. So today we will start the hardcore geography. Earlier I have dealt with your rock structure as such, your geological structure of India, and also I have completed the location and your extension of India, and from today's I will enter into your hardcore geography of India, and I will start with the physical division of India. Again, a quick reminder for all of you, those who are watching me, please, those who want to subscribe, please register with this particular number given below. So this is particular contact number we have sharing with you time and again. I am telling you, please, if you want to register, please call us rather than texting us in your in our Telegram groups. So please call us if you want to register with us. Today I will start with the physical geography as such, or physical geography of India in terms of hardcore geography. So before starting that particular topic, first of all, let me give you a quick brief about what all things we need to understand before entering up into the physical geography of India. Physical geography of India. Okay. So I have already taught you about this particular rock structure. So this rock structure is the basement or the basis for all other physical divisions. Once I will talk about the various physical division including Himalayas and all, I need this particular rock structure, because first of all I will teach you how this particular map of India, जो आज हम लोग इंडिया का मैप देखते हैं, वो किस तरह से बना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैप इन टर्म्स ऑफ योर आपके कागज पे कैसे बना, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जो आपका कंप्लीट इंडिया दिख रहा है, वो इंडिया आज जो प्रेजेंट में दिखता है वो किस तरह से बना. सो आई विल टॉक अबाउट व्हाट the chronology of the formation of India. So I will teach about the chronology of formation of India. So first of all, before starting that, first of all I will give you a quick revision for this particular rock structure so that you can understand all the other concepts well. So if I talk about the rock structure of India, so we have the first rock called Archean rock. We have Archean rock. Above Archean we have Dharwad. Above Dharwad we have Kadapa, and then we have Vindhyan rocks. Above Vindhya we have seen this particular rocks called Gondwana rocks. Gondwana rocks. Above Gondwana we have your Deccan trap. Okay, so we have Archean, Dharwad, Kadapa, Vindhyan, Gondwana, Deccan trap, and I also teach you about the Pleistocene rocks, or sorry, I taught you about the tertiary rock, and also the Pleistocene rock. Pleistocene. So these are the various rocks found in India. So हम लोग क्या करते थे, ये सारे rocks इंडिया पे मिलते थे. And now looking up into this particular rocks, we can find or we can easily tell you कि आपका कौन सा geological structure, or I will say which all physical division are formed by which particular rocks, और उसके हिसाब से आप उसके age को easily find कर सकते हैं. See, this is about the Indian rocks, and Indian rocks के हिसाब से हमने क्या किया है, सारे के सारे एज की क्लासिफिकेशन की है. But in your hardcore geography will see a different type of timelines or in terms of your geological time scale. So what all things I need in particular your geological time scale I will tell you. यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कि आपका geological time scale से कौन कौन से वर्ड्स को हमको यहाँ पर याद रखना है. Because if I teach you the complete geological time scale तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं उतना CGPSC के लिए. ठीक है. So I will talk about, once I will talk about the various oil or marine transgression, I will talk about the Cenozoic era. So that Cenozoic era is the time age, और टाइम है वो पर्टिकुलर उस समय का. तो वो जो है आपका वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में दिया हुआ है, बट वो आपके रिक्वायर्ड नहीं है पीएससी के लिए. सो आई विल जस्ट मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा और द एपॉक और द इयॉन्स, एंड उसके हिसाब से आप क्या करेंगे. ठीक है. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या होता है, जो आपका जो सबसे बड़ा पीरियड है उसको हम बोलते हैं एपॉक, उसके बाद आपका आता है इयॉन, उसके बाद आता है आपके एरा. ठीक है. तो इस तरह से आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल चलता है. बट आई विल नॉट डील दैट पर्टिकुलर थिंग, बट इसके लिए आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इफ यू से प्लिस्टोसिन, तो ये प्लिस्टोसिन वर्ड कहाँ से आया, दैट इज अगेन a particular age during your geological time scale is called the Pleistocene age, where we have the ice or the ice age. So particularly आपको ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है. ठीक है. So we have Archean, Dharwad, Kadapa, Vindhya, Gondwana, Deccan trap and Pleistocene. Now first of all I will give you a brief about this particular, like in this particular Archean rock
एंड दिस पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड द हेडन पीरियड एंड इन दिस पर्टिकुलर धारवाड़. सो आप अगर देखेंगे सो इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर धारवाड़ रॉक सो वी हैव द पेनिनसुलर प्लेट्यू सो आपका धारवाड़ रॉक से क्या बन रहा है आपका कंप्लीट पेनिनसुलर प्लेट्यू बनेगा. ओके, we'll also see the formation of your Aravallis mountain here. We have the formation of Aravallis mountain. We'll also see the formation of Eastern Ghats. तो यहाँ पर आपके क्या हो रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, Aravallis mountain and the Eastern Ghats get formed. मैं आपको कंप्लीट मैप में भी present all this thing. आप just a quick revision about कि आपको किस तरह से आगे लेकर हम चलेंगे. So first of all I will give you this particular thing कि कैसे वो बन रहा है. Then I will explain each and every part of this particular things. ठीक है. Now we'll talk about this particular Kadapa rocks. So अगर आप Kadapa rocks की बात कर रहे हैं, so Kadapa rocks and Vindhyan rocks, these two rocks led to the formation of various basins in India. ठीक है, तो इससे आपका क्या हो रहे हैं बहुत सारे बेसिन्स बन रहे हैं लाइक बिजावर बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, वी हैव बिजावर बेसिन, वी हैव छत्तीसगढ़ बेसिन. ठीक है, सो वी हैव बिजावर बेसिन, वी हैव छत्तीसगढ़ बेसिन एंड वंस दिस पर्टिकुलर बेसिन, ये बेसिन क्या हो रहे हैं पूरा का पूरा एक एरिया डेवलप हो रहा है जहां पर आपके क्या है रिवर इरोजन के कारण रिवर के सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं एंड दैट रिवर सेडिमेंटेशन एक्यूमुलेशन जो हो रहा है उसके बाद धीरे धीरे वही रिवर के जो सेडिमेंट्स है दैट गेट अपलिफ्टेड क्योंकि वो क्या हो रहे हैं एक ही जगह पे जमा हो रहे हैं बार बार, तो दैट गेट अपलिफ्टेड एंड अपलिफ्टेड इनटू अ ह्यूज माउंटेन्स. तो इन सेडिमेंट से हम लोग देखेंगे कि आपके दो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा. द लोअर वन इज योर सतपुरा माउंटेन and the above one is your that particular mountain. So we have Eastern Ghat, we have Aravalli, Eastern Ghat, Satpura mountain and we have Vindhyan mountain. So Vindhyan mountain is nothing but a uplifted sediments of this particular Bijawar basin and Bijawar basin. So Bijawar basin का जो भी uplifted sediments हैं उससे आपका क्या बन रहा है Vindhyan rocks. And from this particular basin, Chhattisgarh basin and the surrounding basin in the region of Nagpur and Maharashtra, you will find your Satpura mountains. So we have this particular thing. Now I'll talk about this particular Gondwana rocks. So this particular Gondwana rocks. So here we have the various coal fields of India. So आपका क्या है complete Gondwana rocks and the coal formation. So we'll see the various coal fields of India. ठीक है, और आपके जहाँ भी आपका Gondwana का एक्सटेंशन है वो देखेंगे कि किस तरह से वहाँ से वाई दिस पर्टिकुलर कोल फील्ड इज फॉर्म एट दैट पर्टिकुलर रीजन, कौन कौन से रिवर्स वहाँ पर आपके बेनिफिशियल थे जिससे आपका क्या हो रहा है कोल किसके बेसिन्स के राउंड मिल रहे हैं. नाउ देन विल टॉक अबाउट द डेक्कन ट्रैप एंड द प्लेट्यूज जहाँ पर ये आपका डेक्कन ट्रैप फैला है इंक्लूडिंग योर महाराष्ट्र प्लेट्यू, योर काठियावाड़ प्लेट्यू एंड अदर प्लेट्यू. सो विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर काठियावाड़. Then we'll move toward your tertiary. So in the tertiary phase we have the your Himalayas mountain building phase. So यहाँ पर आपका क्या हो रहा है Himalayas get uplifted. ठीक है, तो हिमालयस का यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होगा एंड आफ्टर हिमालयस फॉर्मेशन विल सी द फॉर्मेशन ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. बट बिकॉज द हिमालयाज आर स्टिल अपलिफ्टिंग, आपका नदर्न प्लेन्स बन गया वो भर गया, उसके बाद भी हम देखेंगे कि हिमालयस का जो थर्ड फेज स्टार्ट होगा वी कॉल्ड एज योर शिवालिक माउंटेन. सो वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक. और ये जो शिवालिक माउंटेन बन रहा है आपके नदर्न प्लेन्स के बाद, दैट्स वाई हिमालय इज कॉल्ड द यंगेस्ट टेक्टोनिक प्लेन और योर यंगेस्ट टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया. तो सबसे यंगेस्ट लैंडफॉर्म किसको बोलते हैं आपके हिमालयाज को बोलते हैं. सो विल सी द हिमालयाज एज द यंगेस्ट टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया. सो टेक्टोनिक इज अ थ्योरी ऑफ किस तरह से प्लेट्स हैं, देयर आर मेनी प्लेट्स. आपका क्या होता है इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड टेक्टोनिक, ज्योग्राफी में ये सारे चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हैं. सो सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका क्या होता है इस तरह से क्रस्ट है. सो दिस इज योर कॉन्टिनेंट क्रस्ट, दिस इज योर ओशियन क्रस्ट. ठीक है, जो आपका अर्थ का जो लैंड वाला पार्ट है उसका जो बेसमेंट है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट क्रस्ट, जो हम यहाँ पर जो जमीन है, और जो समुद्र होगा या आपका ओशियन होगा उसके जो बॉटम में जो होगा लैंड उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट. So tectonic tells us about this particular tectonic theory tells about this particular things, plates. एंड आपको वो बताते हैं कि ये प्लेट्स वेयर दिस प्लेट्स आर मूविंग, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विच अदर. जब आपका ओशियन इंटरेक्शन होगा तो उससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, वंस दिस ओशियन दिस कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक प्लेट गेट इंटरेक्ट, उससे किस तरह से फॉर्मेशन होता है. सो ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ योर हार्डकोर ज्योग्राफी. तो ये आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगेन दिस पर्टिकुलर वर्ड आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर दिस आर द टेक्टोनिक्स. जो एज आई टोल्ड यू हिमालयस आर द यंगेस्ट टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड टेक्टोनिक. ठीक है, तो टेक्टोनिक एक थ्योरी है कि किस तरह से आपके वेरियस लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड. नाउ इफ यू सी, तो यहीं से आपका पीएससी ने क्वेश्चन उठा लिया था. ठीक है, सो पीएससी आज दो क्वेश्चन पूछा था, अभी नहीं, मतलब आपके पहले के एग्जाम्स में 2016 एंड 17 पीएससी आज 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक.
फर्स्ट विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा होगा? पीएससी आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वंस, सो वी हैव सीन कि आपका सबसे पहले क्या बन रहा है आपका अरावलीज माउंटेन, सो अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, सो वी हैव अरावलीज माउंटेन. आफ्टर अरावली वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, वी हैव सीन, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है. देन वी हैव योर सतपुड़ा माउंटेन्स, सतपुड़ा, देन वी हैव योर विंध्याचल माउंटेन, देन वी हैव योर हिमालयाज. सो आपको इस तरह से अगर क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रॉक स्ट्रक्चर कि आपका क्या है, सबसे पहले ये रॉक बना, फिर ये रॉक बना, फिर ये बना, फिर ये बना. सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स टेल्स यू कि आपका कौन सा जोग्राफिकल डिवीजन आपका कब किसके बाद फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड वंस यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन क्वेश्चंस. आपको ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है. सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रॉक स्ट्रक्चर को, आपको पहले तो अच्छे से समझ आएगा किसके बाद कौन सा है, एंड इन दिस मैनर दिस ऑल जितने भी आपके ये इवेंट्स हो रहे हैं, ये टेक्टोनिक डिविजन्स हैं, ये सारे के सारे फॉर्म होते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग्स गेट फॉर्म्ड इन इंडिया. तो हम लोग अब चलेंगे पूरे के पूरे टेक्टोनिक इवेंट को समझेंगे कि किस तरह से आपका जो आज यू आर सीइंग द प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया और द प्रेजेंट जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वो किस तरह से कंप्लीट बना है, एंड देन विल टॉक अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एज सच. ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग. सो लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम यहाँ पर रहने देते हैं, एंड देन विल स्टार्ट योर पर्टिकुलर थिंग. सो अर्लियर टाइम, सी दिस इज द पर्टिकुलर योर ग्लोब, ठीक है. तो ये आपका क्या था अर्लियर, दिस इज द योर अर्थ, और अर्थ पे क्या हुआ, वी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज योर अगेन लैंड एंड अदर वन इज योर ओशियन. सो अर्लियर, बहुत सालों पहले, अर्लियर टाइम्स, दिस इज योर कंप्लीट अर्थ क्रस्ट, जो आज जितने भी लैंड फॉर्म्स है, ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर एट वन प्लेस. सो दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट, दिस इज द कॉन्टिनेंट एंड ऑल द सराउंडिंग एरियाज आर योर ओशियन. तो ये क्या है, ये सारे के सारे दीज आर द ओशियंस, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर कॉन्टिनेंट, दिस इज द कॉन्टिनेंट पार्ट. So this particular continent initially broke up into, this particular continent gets broken up. क्यों broke हुआ? Because of the convection cells and other pressures के कारण क्या हुआ, with time ये जो continent था ये broken up हुआ. Okay? So this earliest continent, ये जो पहला वाला continent था, this continent is called as your Rodinia. Rodinia. Okay? एंड दिस पर्टिकुलर रोडिनिया ब्रेकअप इनटू द मैनी पार्ट्स. तो इसे क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टों में ये टूट गया. ठीक है, लाइक दिस पर्टिकुलर, सपोज कि इस तरह से आपका क्या हुआ, ये रोडिनिया गट ब्रोकन अप, और ब्रोकन अप होने के बाद क्या हो रहा है, रोडिनिया आपस में ये जितने भी जो भी प्लेट्स थे, सो प्लेट्स गेट मूव्ड. आपका क्या हो रहा है नेक्स्ट इवेंट, अगर सपोज आई विल प्रोजेक्ट इट हियर एक छोटे से डायग्राम में. सो पर्टिकुलरली आपका जो ऊपर वाला पार्ट है कुछ इस तरह से अलग अलग जगह पे मूव कर गए, जो ये आपके जो टूटे हुए थे पार्ट, दिस पर्टिकुलर, एंड सिमिलरली द लोअर वंस मूव समवेयर हियर लाइक दिस. सो ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स जो एक बड़ा सा लैंड मास था, दैट लैंड मास ब्रोकन अप इनटू योर स्मॉलर पार्ट्स, एंड दैट स्मॉलर पार्ट्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्टार्टेड मूविंग अप. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर लैंड मास, इफ आई टॉक अबाउट द इंडिया, इसमें तो ये वाला जो बीच का ये वाला एरिया था, दिस पर्टिकुलर एरिया समवेयर समथिंग लुक लाइक दिस. सो दिस एरिया वी हैव समथिंग लाइक दिस. सो वी हैव a kind of this type of structure, and also we have, okay, let me make this particular thing for you. So we have something like this. Okay, so इस तरह से हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर था फॉर इंडिया, एंड दिस पर्टिकुलर, दिस वन, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर थ्री थिंग्स, ये जो छोटे छोटे तीन टुकड़े थे, ये आपस में आकर क्या हुए, दे गेट इंटरेक्ट. तो यहाँ पर आपस में आकर ये मिल गए, एंड दिस पर्टिकुलर थ्री पार्ट्स, the upper one is called as your Aravali. This is your Aravali's proto-continent. Proto means small, so Aravali's proto-continent. This particular, ये वाला जो इधर का बच रहा है, on this particular, so this line will go like this. This above one is called as your Singhbhum. Singhbhum proto-continent. This is your Singhbhum proto-continent, and the lower one, this particular lower one is your Dharwad proto-continent. दिस इज योर धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट. सो आपका ये क्या था, इस तरह से तीन डिवीजन बने.
सो दिस पर्टिकुलर अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट, सिंहभूम प्रोटोकॉन्टिनेंट एंड धारवाड़ प्रोटोकॉन्टिनेंट, ये तीन के तीन आपके कहते हैं इस तरह से सेक्शन डेवलप हुआ था। देन विद टाइम अगेन ये जो सारे के सारे सेक्शन है ये सारे के सारे जाकर अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग जो आपके बाइफरकेट हुए थे, दिस सेक्शन अगेन विद टाइम गट मर्ज इनटू अ सिंगल लैंडफॉर्म। तो विद टाइम क्या हो रहा है, ये फिर से ये जो आपका इनिशियली बिफोर द जो आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी कि पेंजिया वाज डेवलप्ड, तो बिफोर दैट पेंजिया वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट एंड ये अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट के पास का जो ये एरिया था, वंस दिस प्लेट्स गेट स्विच्ड, जब ये प्लेट आपस में टकरा रहे थे, ये ऊपर वाला ये और ये, तो यहीं पर आपका क्या हो रहा था, बिकॉज इफ दिस टाइप ऑफ टू प्लेट्स, मानते हैं ये दो प्लेट है, ये अरावली है एंड दिस इज योर सिंहभूम प्लेट, ओके। सो सिंहभूम प्लेट, तो ये दोनों में जब इंटरेक्शन हुआ, वंस ये दोनों आपस में इंटरेक्ट हुए, तो वन प्लेट गोज लाइक दिस एंड उसका जो भी यहाँ था वो इस तरह से एक डेवलप हुआ, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी दिस आर द टू प्लेट्स एंड द जो आपका ये क्या है, हैवीएस्ट प्लेट है, ये क्या है आपका लाइट प्लेट है, तो ये हैवी वाला प्लेट जो है वो क्या होगा, वंस दे विल इंटरेक्ट लाइक दिस, जो हैवियर है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो हैवियर वन विल गो डाउन, सो दिस विल गो डाउन एंड दिस वन पर्टिकुलरली कम्स लाइक दिस, सो इट विल क्या करेगा, यहाँ से ये कंप्लीटली, यहाँ से कंप्लीट ये होगा इरोजन, इट विल डू द इरोजन। तो ये क्या होगा, जब ये लैंड नीचे जाएगा तो इस लैंड पे जो भी आपके, सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ओवर द लैंड एंड दिस लैंड विल गो बीनीथ दिस, इसके नीचे अगर ये जाएगा तो ये वाला जो एरिया है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली वो यहाँ पर फिक्स हो जा रहा है। ये लैंड तो नीचे जा रहा है बट ये एरिया धीरे धीरे यहाँ पर फिक्स हो रहा है एंड इस फिक्सिंग से क्या हो रहा है, ये ऑल दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग गेट एक्रीटेड, एक्रीटेड मतलब क्या हो रहा है, एक जगह पे आके वो क्लब हो जा रहे हैं, सो दिस पर्टिकुलर थिंग गेट एक्रीटेड, ठीक है। एंड दिस एक्रीशन विथ टाइम, ये क्या हो रहा है, ये एक्रीशन समय के साथ धीरे धीरे इसमें बहुत सारे आपके क्या हो रहे हैं, अलग अलग रॉक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते जा रहे हैं, आपके बहुत सारे रॉक्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं विद टाइम, दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड एंड एक्रीटेड एंड दिस एक्रीशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। इसके कारण क्या हो रहा है, एक माउंटेन बना जिसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। सो अरावली माउंटेन इस तरह से फॉर्म हुआ है एंड दिस इन दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉन्टिनेंट वी हैव द अरावलीज फोल्ड माउंटेन, ठीक है। सो वी हैव अरावली फोल्ड माउंटेन। सो पहले अरावली आपके इवन हिमालय से भी बड़ा था। सो अरावली वंस देयर वाज अरावली का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक था, इवन लक्षद्वीप आइलैंड्स तक था। तो अरावली इनिशियली वाज वेरी बिगर, ठीक है। सो क्या हो रहा है, अगेन यू अंडरस्टैंड, जब दो प्लेट्स टकराते हैं आपस में, वन प्लेट विल सब्सिडाइज, एक प्लेट क्या हो रहा है, नीचे जाएगा एंड बिकॉज ऑफ द एक्टिव फ्रिक्शन, यहाँ पर जो फ्रिक्शन हो रहा है इसके कारण क्या होगा, इस पे जो लैंड मास थे दैट विल गेट यहाँ से इरोडेड एंड लिथिफाइड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दैट लिथिफाइड पार्ट जो यहाँ पर हो रहा है उसमें एक्रीशन होगा एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर माउंटेन विच इज कॉल्ड एज योर फोल्ड माउंटेन। तो उससे एक फोल्ड माउंटेन बनेगा विच इज कॉल्ड एज योर अरावलीज फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो इस तरह से आपका अरावली फोल्ड माउंटेन बना था। सिमिलरली वेयर दिस टू पर्टिकुलर इंटरेक्ट, सिंहभूम एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो हियर विल सी द फॉर्मेशन ऑफ योर ईस्टर्न घाट्स। तो उस तरह से आपका ईस्टर्न घाट भी बनेगा, ठीक है। नाउ अगेन विथ टाइम क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, ये जो सबके सब अलग हो गए थे लाइक दिस, दे अगेन एक्यूमुलेटेड इनटू अ सिंगल स्ट्रक्चर। तो इसके बाद क्या हो रहा है, ये विथ टाइम ड्यूरिंग योर प्री कैम्बेरियन एरिया, सो आपका क्या है, प्री कैम्बेरियन, दिस इज द अगेन एज। तो आपको एज का नाम याद नहीं भी होगा, चल जाएगा, जस्ट अंडरस्टैंड। तो आपका एक एज था कंप्लीटली, उसको बोलते हैं प्री कैम्बेरियन। सो प्री कैम्बेरियन के एंड पे आपका क्या हो रहा है, दिस ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन एक्यूमुलेटेड इनटू अ सिंगल पीस। तो फिर से क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से अगेन आपका एक सिंगल पीस में कन्वर्ट हो गए एंड दिस पर्टिकुलर सिंगल कॉन्टिनेंट, ये जो आपका अंदर है, दिस इज कॉल्ड एज योर पेंजिया, ओके। सो मोस्टली बुक विल स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेंजिया, ठीक है। तो पेंजिया से पहले देयर वाज अ रोडिनिया, दैट रोडिनिया ब्रोक अप इनटू अ मेनी पार्ट्स एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर पार्ट मूव फ्रॉम वन, एक से आप क्या कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, देन अगेन दिस पार्ट्स क्या हो रहे हैं, सारे के सारे देन अगेन एक्यूमुलेटेड और एक पर्टिकुलर लैंड मास बन रहा है, दिस लैंड मास इज कॉल्ड एज योर पेंजिया एंड इन दिस पर्टिकुलर पेंजिया वी हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वहां पर आपका होगा। तो सपोज दिस इज द पेंजिया, सो पेंजिया में आपका क्या था, कुछ इस तरह से बना होगा, this particular is your landmass, suppose this is one landmass, this is again a landmass, we have something like this, okay, this one is our Indian landmass, also we have like this particular structure, like this, we have something like this, okay, we have this particular and this। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्या था, ये सारे के सारे लैंडमास सिंगल एक यूनिट पे आकर जुड़ गए थे आपस में एंड दिस पर्टिकुलर लैंडमास इज कॉल्ड एज योर Pangaea. Again with time, as suggested by the one of the most famous geographist named Alfred Wegener, अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि विथ टाइम क्या हुआ, ये जो पेंजिया है
and the surround, sorry, this particular is your Pangea, and Alfred Wegener suggests with time this particular Pangea also broken up. तो ये वाला Pangea भी क्या हुआ, again it broken up into the two halves, ठीक है, ये क्या हुआ, ये भी दो भागों में टूट गया. So particularly it will look like this particular thing. So आपका ये जो Pangea था, again this broken up into the two landmass, आपका दो landmass में टूट जाएगा. So this two landmass, okay, like this. This particular, the upper one, and this particular is the lower land mass, okay. And in between जो आपका पूरा का पूरा सराउंडिंग एरिया के बाद ये वाला जो एरिया दिख रहा है, which is the part of your ocean water, so ये जो आपका complete ocean वाला part है, this particular ocean, the earliest ocean was called as your Panthalassa. So ocean का नाम क्या था, Panthalassa. Panthalassa. So this ocean is your Panthalassa ocean, and this two particular land mass, ये वाला जो पार्ट था इसको बोलते हैं Pangea, and this particular Pangea land mass broken up into the two half. The above one जो ऊपर वाला है, this one is called as Ankara land or the Angara lands, ठीक है. So this one is your Angara land or Ankara land, this is Angara land, and the lower one जो ये नीचे वाला है, it is your Gondwana land, Gondwana land, okay. So we have two land mass. After this particular Pangea broken up into the two half, the above one is called your Angara land and the lower one is called as your Gondwana land. And India is the part of this particular Gondwana land. So time and again PSC asks the question in this particular things also, in Chhattisgarh section also, कि छत्तीसगढ़ आपके किस लैंड मास का पार्ट था. So again as such India is the part of Gondwana land, तो आपका क्या होगा, completely वो भी Gondwana land का पार्ट होगा. But this Gondwana land has nothing to do with your Gondwana rocks, ठीक है. वो आपका उसको Gondwana land because of the formation उस एज के कारण उसको बोला गया है, बट दैट वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीट गोंडवाना लैंड इज मेड अप ऑफ योर गोंडवाना रॉक्स. नो, ऐसा नहीं है. दिस लैंड इज अगेन मेड ऑफ द आर्कियन धारवाड़ एंड यू विल फाइंड ऑल द रॉक्स ओवर दिस, बट द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज ओनली गोंडवाना लैंड, ठीक है. तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये गोंडवाना रॉक्स है. दिस इज द गोंडवाना लैंड एंड दिस पर्टिकुलर इज योर अंगारा लैंड. सो इस तरह से क्या हुआ, वंस वी हैव द योर this particular thing called Rodinia broken up into the many small proto-continents. This proto-continents and switched together and led to the formation of this particular thing because we are dealing for your India. तो इस तरह से कुछ बना. And again you can see this particular thing is here. आपके इस लैंड मास में आपको दिख रहा होगा, ये particularly इंडिया ही है, ठीक है. So this particular things again all the कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सारे के सारे आपस में मर्ज हो गए. मर्ज होने के बाद फिर क्या हुआ, अगेन दिस पेंजिया ब्रोकन अप इनटू द टू हाफ्स. द अपर वन इज कॉल्ड योर अंगारा लैंड एंड द लोअर वन इज योर गोंडवाना लैंड, ठीक है. तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा. नाउ विल स्टार्ट आवर ज्योग्राफिकल हिस्ट्री और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच और योर ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम. सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अंगारा लैंड एंड योर गोंडवाना लैंड, एंड देन विल सी हाउ इंडिया इज फॉर्म, ठीक है. तो आपको यहाँ से पूरा का पूरा नाउ यू विल get the complete information regarding the formation of India. अब हम लोग वहाँ से start करेंगे अब. So we'll have this particular thing. I'll rub this particular. I'll draw again. चलो अब देखते हैं हम लोग आपका किस तरह से. Now we have this particular structure. This is the earth. The above one we have like this, and in the lower part we have this. Okay. So this is your Angara land. And this is your Gondwana land. Gondwana land. And in the surrounding area, ये जो पूरा का पूरा एरिया बच रहा है, we have the ocean name Panthalassa. So Panthalassa. Not here, but in sometimes in UPSC and in your CDS exam they ask you, ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज द पार्ट ऑफ योर पैंथालासा ओशन. मतलब आपका ये माना जाए इफ दिस इज द पैंथालासा ओशन, तो उसका जो रेमेनेंट, उसका जो बचा हुआ पार्ट है, द रेमेनेंट ऑफ पैंथालासा इज विच ऑफ द पर्टिकुलर ओशन, इज योर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और द पैसिफिक ओशन. सो आंसर लाइज हियर इज योर पैसिफिक ओशन. तो आपका जो आज पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन देखने को मिल रहा है वो इसका ही पार्ट है, कॉल्ड एज योर पैंथालासा ओशन, ठीक है. सो वी हैव द पैंथालासा, वी हैव अंगारा लैंड एंड द गोंडवाना लैंड. एंड दिस पर्टिकुलर लैंड आई विल गिव यू द ब्रीफ पिक्चर कि किस तरह से आपके पर्टिकुलरली लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है. इससे ही आपके सारे कॉन्टिनेंट टूट कर सामने आएंगे, ठीक है. सो समवेयर हियर जो पूरा का पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक दिस. Okay, so we have something like this earlier. So this upper part, this is your North America, the lower part is your South America, then we have something like this is your Greenland, then again
वी हैव द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, हियर वी हैव द अंटार्कटिक ओशन, देन फिर आपका ये क्या है, दिस इज द यूरोप पार्ट एंड दिस इज द अपर द नदर्न एशिया, सो नदर्न पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। सो ऐसा था, एंड दिस पर्टिकुलर लोअर थिंग इफ यू सी दिस इज द योर नॉर्थ अमेरिका, नॉट साउथ अमेरिका, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज योर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद दिस वन इज योर अफ्रीका, बिलो अफ्रीका वी हैव समथिंग लाइक दिस इज योर मेडागास्कर, मेडागास्कर देन वी हैव योर इंडिया एंड हियर वी हैव द ऑस्ट्रेलिया, एंड इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। सो ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है, सो योर गोंडवाना लैंड कंसिस्ट ऑफ, कभी कभी पूछ सकता है, नॉट इन द पीएससी बट प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो गोंडवाना लैंड में आपका क्या क्या आता है, साउथ अमेरिका, वी हैव योर अफ्रीका, I am talking about the continent Africa, then for the Asian continent we have your India and as such, so Asia में आपका इंडिया वाला पार्ट दिख जाएगा, एशिया, and also we have your Australia, and in your Angara land we have your North America, Australia, and in Angara part we have your North America, Greenland, Europe and नदर्न पार्ट ऑफ एन एशिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थिंग्स था जो ये आपका है गोंडवाना लैंड, एंड विथ टाइम ये सारे के भी सारे आप क्या हुए, आपस में एक दूसरे से दूर होने लगे। सो समथिंग लाइक दिस, आई विल ड्रॉ पर्टिकुलर थिंग, सो कुछ इस तरह से हुआ होगा। दिस पर्टिकुलर आपका ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, कुछ इस तरह से आपस में क्या हुए, एक दूसरे से ये दूर होने लगे, एंड सिमिलरली जो आपके ऊपर वाले थे, ऊपर वाले पार्ट भी कुछ इस तरह से मूव करने लगे, ठीक है। सो ऑल दिस लैंड मास सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो आपका सारे के सारे लैंड मास सेपरेट हो जाते हैं। सो आई सपोज दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैप, आपका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से हम समझते हैं कि आप ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड जो है, दिस इज द अर्थ, एंड नाउ यू विल सी द स्टोरी ऑफ इंडिया। सो दिस पर्टिकुलर यूरोप, हम ये मानते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो यूरोप है, जब ये टूटा होगा तो यहाँ पर आपका अमेरिका इस तरह से कुछ होगा। सो दिस पार्ट नॉर्थ अमेरिका, हियर वी हैव सम यूरोप। सो आपका कहीं ना कहीं ये जो यूरोप वाला पार्ट है, समवेयर इट कम्स लाइक दिस, एंड ये आपका क्या हो गया, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो है आपका क्या है, यूरोप। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर यूरोप एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एशिया। सो दिस पर्टिकुलर यूरोप एंड एशिया काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो आपका बना है कंप्लीट एक प्लेट, which I am calling as your Europe. So this particular plate is called as Eurasian plate. This is your Eurasian plate. Eurasian plate. That is Europe plus Asia. तो आपका क्या है, यूरोप एंड एशिया दोनों को हमने क्लब किया। So we are supposing कि आपका कुछ क्या है, यूरेशिया प्लेट होगा, ठीक है। एंड सेम I'll draw like this particular and this particular. नाउ मैं आपका क्या कर रहा हूँ, इंडिया को सिर्फ अलग कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंडिया वाले सेक्शन को। सो दिस इज अवर इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट लुक लाइक दिस पर्टिकुलर, दिस इज द इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। सो अर्लीस्ट इंडियन प्लेट कंप्राइजेस ऑफ 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट, 3 छोटे छोटे कॉन्टिनेंट से बना था। सो दिस वन, ये वाला जो है, दिस इज योर सिंहभूम, सिंहभूम प्रोटो कॉन्टिनेंट। दिस पर्टिकुलर इज योर अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट, अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट, एंड दिस वन इज योर धारवाड़, धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट, ओके। एंड अर्लियर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपका 2 माउंटेन्स आपके ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। सो द 2 माउंटेन्स विच आर फॉर्म्ड आर योर अरावली माउंटेन्स, Aravalli mountains, and also we have Eastern Ghats, ठीक है। तो ये हमने पहले देखा कि आपके ये जब स्विच्ड हो रहे थे आपस में, तब यहाँ पर आपका अरावली माउंटेन बना था, नीचे हमारे क्या था, योर ईस्टर्न घाट्स। एंड अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो दे आर द फोल्ड माउंटेन। सो दीज आर द अर्लीस्ट और द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया, ठीक है। सम ऑफ द बुक्स मेंशन ईस्टर्न घाट, वो सबको हटा देना, वो सारे फर्जी बुक हैं, ठीक है, तो उनको बिल्कुल फेंक देना साइड में, नहीं, आप प्रॉपर ऑथेंटिक बुक से देखेंगे और प्रॉपरली इस चीज को देखेंगे तो यूल सी अरावलीज आर द अर्लीस्ट और द ओल्डेस्ट आपका फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया। सो दिस इज पर्टिकुलर इंडियन प्लेट एंड दिस इज द यूरेशियन प्लेट। और आज अगर हम लोग देखते हैं इंडिया का पर्टिकुलर मैप, इफ आई ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, दिस पर्टिकुलर मैप, सो यूल सी आपका कैसा है, हियर इज योर इंडिया, दिस इज द पर्टिकुलर म्यांमार, पाकिस्तान, ईरान, and if you see this particular projection, we have the Jammu and Kashmir like this, and above this we have your ये वाला section में China and ऐसा कुछ है, ठीक है। so this is the Eurasia, Eurasia, this is the India
ठीक है। सो अगेन मतलब आपका क्या है, विथ टाइम ये पर्टिकुलर यहाँ पर गया है एंड दिस पर्टिकुलर मर्ज हियर। सो समय के साथ क्या हुआ, इंडिया आकर यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। सो इंडिया उसके साथ क्या होगा, मिल जाएगा एंड अगेन जब वो वहाँ पर मिलेगा देन वी हैव दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडिया। बट यहाँ जब जुड़ा नहीं था, जब दे आर फर्दर अपार्ट, तो किस तरह से जर्नी थी एंड हाउ ऑल द पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन गेट फॉर्म, हम उस चीज को समझेंगे, ठीक है। सो दिस इज अरावली कॉन्टिनेंट, दिस इज सिंहभूम एंड दिस इज योर धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट। नाउ I'll say that particular is your यूरेशिया। सो इफ आई टॉक अबाउट कि इंडिया ने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की और जाकर आपके यूरेशियन प्लेट से टकराया एंड दैट पर्टिकुलर यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद आज जो हम प्रेजेंट इंडिया देख रहे हैं वो चीज़ हमको दिख रहा है। सो ऑन दिस जर्नी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन टू योर दैट पर्टिकुलर यूरेशियन प्लेट, जब इंडिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था दिस पर्टिकुलरली, सो दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज योर, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन वन ऑफ द PSC एंड ऑल्सो इन द CDS एग्जाम कि आपका इंडिया ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग्स आफ्टर बाइफरकेटिंग फ्रॉम दिस अफ्रीका एंड दिस पर्टिकुलरली आपका जब यूरेशिया की तरफ जा रहा था तो वो किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा था, इन विच डायरेक्शन इंडियन प्लेट इज मूविंग। सो पर्टिकुलर डायरेक्शन इज योर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स योर नॉर्थ, so India is moving towards the north and also in this particular direction called east, so India is moving in your north east direction, ठीक है। तो इंडिया अपनी जर्नी में कहाँ से कहाँ मूव कर रहा था, इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है, एंड फ्रॉम योर सदर्न, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाद में देखेंगे तो फ्रॉम सदर्न साइड ऑफ, क्योंकि अफ्रीका को देखेंगे सो अफ्रीका का जो नीचे वाला पार्ट था दैट इज बिलो इक्वेटर, सो बिलो इक्वेटर से वो अबव इक्वेटर मूव किया है। सो इंडिया इज मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेटर्स, तो आपका इक्वेटर्स के नीचे से लेकर आपके ट्रॉपिक्स तक मूव किया है, ठीक है। सो इंडिया इज मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक्स, सो नॉर्थ ईस्ट टू योर, सो अगेन दिस पर्टिकुलर इज द डायरेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था और कहाँ से कहाँ मूव किया, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स में मूव किया। नाउ विल सी कि आपका किस तरह से मूव किया, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, ये अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट ऑन ऑल दिस, वी हैव दिस आर्कियन रॉक, वी हैव धारवाड़ रॉक, वी हैव कडप्पा रॉक, वी हैव विंध्यन रॉक्स, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया एंड अगेन आई एम टोल्ड यू कि आपका ये जो फेज था कडप्पा और विंध्या का, यहाँ पर आपके क्या हो रहे थे, बहुत सारे बेसिन्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, बेसिन्स जो छोटे छोटे। सो दिस पर्टिकुलर ऑन इस जर्नी फ्रॉम हियर, जब ये प्लेट इस तरह से मूव कर रहा था तो अगेन इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ये वाला जो रीजन था यहाँ का, बिकॉज द अरावली का हाइट बहुत ज़्यादा, तो अरावली से उस समय बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते थे, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अरावली वी हैव द वेरियस रिवर्स, ओरिजिनेशन ऑफ वेरियस रिवर एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईस्टर्न घाट साइड, तो वहाँ से आपके क्या होते थे, बहुत सारे रिवर्स ओरिजिन हो रहे थे एंड दिस पर्टिकुलर रिवर ड्रेन लाइक दिस, इस तरह से कुछ ऐसे, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर रिवर्स आर ड्रेनिंग लाइक दिस एंड इन दिस मैनर। सो ये जो रिवर जो यहाँ पर ड्रेन हो रहे थे दे फील्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पर जो भी चीज़ें थे वहाँ पर क्या होता है, रिवर बिकॉज ऑफ द एक्टिव इरोजन, तो रिवर क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे सेडिमेंट्स जो भी वहाँ पर रॉक्स थे, तो रॉक्स को काटकर वहाँ पर सेडिमेंट्स जमा कर रहे थे एंड उन सेडिमेंट एक्यूमुलेशन के कारण क्या हुआ, ये वाले पूरे एरिया में, इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो एरिया था ऐसा, यहाँ पर पूरा का पूरा रॉक जमा हो गया, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रॉक, यहाँ पर पूरा का पूरा रॉक जमा हो गया। सिमिलरली हियर, सो दिस पर्टिकुलर रॉक जो ये जमा हुआ, दिस लोअर वन, दिस वन एंड दिस पर्टिकुलर, तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, महाराष्ट्र बेसिन, दिस इज द बिजावर बेसिन। सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ बेसिन, महाराष्ट्र बेसिन, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ बिजावर बेसिन, ओके। सो आपका इस तरह से बेसिन का फॉर्मेशन हुआ। अगेन दिस पर्टिकुलर धारवाड़ प्लेट्यू, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि धारवाड़ के भी बहुत सारे सेक्शन है, यहाँ पे करेंगे बहुत ज़्यादा हॉस पॉस हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ बेसिन, दिस इज द बेसिन area between the rivers, so this is the basin, Maharashtra basin, Bijavar basin and we have the formation of various other basins as such। तो यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे basins का निर्माण हुआ, ठीक है, and it led to the formation of various basins in India। So we have your this particular basins and then India again once it started its journey, आपका इस तरह से इंडिया मूव कर रहा था, तो somewhere here like this, okay। So this particular basins got uplifted, जो river sediments के जो basins थे, जो भी आपका दिस इज द पर्टिकुलर माउंटेन, आपके इस माउंटेन से क्या हो रही है, रिवर्स यहाँ से ड्रेन हो रही है, सपोज दिस इज द रिवर, तो रिवर्स के नीचे अगर देखा जाए तो रिवर्स में यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सेडिमेंट्स, मतलब जो भी आपके रॉक्स वगैरह को इरोजन करेगा रिवर और इरोड करके काट कर लाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं नदी के उसकी क्या होगा, बेस में आपके आकर ये जमा होने लगेंगे।
सो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या होगा, रिवर्स के सेडिमेंट्स जमा होने लगेंगे एंड विथ टाइम ये रिवर्स का जो एरिया है ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो आप देखते होंगे कि रिवर्स वहाँ पर भी दिखनी कम हो जाती है क्योंकि रिवर्स फिर उसको काट नहीं पाते, उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ये सेडिमेंट फिल हो गया, दिस पर्टिकुलर एरिया अगेन गेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, और वो अपलिफ्ट होते होते वो क्या बनता है, एक माउंटेन बन जाता है। सो दिस पर्टिकुलर एरिया एंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव दैट फॉर्मेशन ऑफ टू ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ इंडिया। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर, दिस इज योर अरावली, there we have your Singhbhum, and this one is your, this particular is your Dharwad. So this particular section like this, ठीक है, so आपका इस सेक्शन में से ब्रोकन सेक्शन से बनकर दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज योर सतपुड़ा माउंटेन फॉर्म। आपसे इसमें क्वेश्चन अगेन क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि किसके बाद कौन सा फॉर्म हुआ, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सो दिस पर्टिकुलर इज योर सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन, okay, so these are the various ranges of Satpura. If we talk about the Ajanta, Satmala, we have Gavelgarh, we have your Maikal range, ठीक है। So I'll give all the information regarding various ranges of the Satpura and all. अभी हम लोग बस नाम देख रहे हैं, तो अजंता, सतमाला, गवेलगढ़ and all we have. Now this particular from your this particular from Gujarat section to this particular, so this mountain is called as your Vindhyan mountain. So we have your Vindhyan mountain. So we have the formation of Satpura earlier, then we have the formation of Vindhyan mountain. Okay, so they are because of the this particular sediment upliftment or sediment upliftment. So again if the question arises कि Satpura are the mountains made from that particular continental rocks, तो नहीं, ये आपका क्या है, again fluvial origin का मतलब आपके river cutting के बाद जो sediments आ रहे थे वहाँ से, and that particular depression developed, जो आपका जो particularly river cutting से जो भी rocks develop होते वो rocks uplift हुए, and that rock upliftment led to the formation of this particular type of mountain called Satpura mountain and Vindhyan mountain, ठीक है। Now दिस पर्टिकुलर ये आपका बन गया। सो अगेन इंडिया इज मूविंग अगेन आगे, आपका इंडिया आगे और जा रहा था। सो वी हैव दैट पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड गोंडवाना। सो दिस पर्टिकुलर जंक्शन, ये जो तीन चीज़ें आपकी जुड़ी हुई हैं आपस में, दिस थ्री, वी हैव दिस एंड दिस। सो आई रब दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड विंध्या एंड सतपुड़ा, उसको एक छोटे से डायग्राम में बना लेते हैं। सो विल सी लाइक दिस। सो वी हैव योर सतपुड़ा माउंटेन, दिस इज द सतपुड़ा एंड दिस वन इज योर विंध्यन माउंटेन, ठीक है। इतने से आपको क्लियर हो जाएगा, सतपुड़ा एंड विंध्यन वी हैव। नाउ विल सी इसके बाद की जर्नी किस तरह से थी इंडिया की। सो अगेन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये क्या था, ये आपस में अर्लियर दिस वाज द प्रोटो कॉन्टिनेंट, ये आपका एक प्रोटो कॉन्टिनेंट है, छोटे वाले कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े थे। तो जुड़ने के कारण क्या था, अगेन इफ दिस पर्टिकुलर इज अ लैंड मास, आप सपोज करो ये एक लैंड मास है, ये एक दूसरा लैंड मास है, अब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये तीसरा लैंड मास, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सो दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ से ये जुड़े थे, ये अभी भी ये क्या है, हल्के से ये क्या होते हैं, लूज एरिया होते हैं, बहुत प्रॉपरली आगे जुड़ गए, बट अगेन दिस एरिया इज अ लूज एरिया। अब वहाँ पर कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा तो वो क्या होंगे, अगेन इफ दिस पर्टिकुलर एरिया हैज़ अ, पूरा का पूरा प्रेशर डेवलप होगा तो प्रेशर कहाँ से रिलीज होगा, इसी पॉइंट से रिलीज होगा, ये जो लूज एरिया, ठीक है। और यहाँ से जब प्रेशर रिलीज होता है तो उसी के कारण आपका अर्थक्वेक देखते हैं हम लोग मोस्टली, अब आगे देखेंगे। तो यहाँ से आपका प्रेशर रिलीज हुआ एंड विथ टाइम एक समय आया जब ये पूरा का पूरा जो 1, 2 एंड 3 ये जो ट्रिपल जंक्शन बना हुआ है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रेशर ये क्या हुए, धीरे धीरे फट गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होने के कारण क्या हुआ, ये भी आपस में क्या हुए, हल्का सा यहाँ पर एक्टिव रिफ्टिंग होने लगा, ठीक है। तो ये एरिया क्या थे, जो यहाँ पर बहुत प्रेशर होने के कारण ये एरिया भी धंस गया, ये पर्टिकुलर एरिया देखेंगे तो ये वाला एरिया भी इस तरह से धंस गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रेशर वी विल सी द रिफ्टिंग। रिफ्टिंग मतलब आपका जो लैंड है, लैंड आपका एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, और लैंड दूर होने से एक तो ये पर्टिकुलर थिंग, और दूसरा इफ दिस इज द पर्टिकुलर प्लेट एंड आपका क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर दोनों तरफ से नीचे से बहुत इंटेंस प्रेशर है, इफ दिस इज द प्लेट, दिस इज द पर्टिकुलर प्लेट, यहाँ पर आपका एक प्लेट है ये, और नीचे से एक क्या है, इस तरह से प्रेशर सेल्स घूम रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। वी हैव द प्रेशर सेल्स लाइक दिस। तो आपका क्या हो रहा है, इफ दिस इज द लैंड मास, सपोज आई गिव यू द, आई एक्सप्लेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, इफ दिस इज द लैंड मास, सो अगर ऐसा कुछ आपका लैंड मास है तो आपका प्रेशर सेल कैसे घूमते हैं, लाइक दिस, ठीक है। सो वी हैव द प्रेशर सेल लाइक दिस एंड अगेन इन दिस सेक्शन वी हैव द प्रेशर सेल लाइक दिस। तो आपका ये इस तरह से एक प्रेशर सेल बना है, एक ऐसा बना है। सो बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये दोनों प्रेशर सेल कैसे हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे
तो आपके दोनों प्रेशर सेल कैसे होते हैं, ये एंड ऐसा। तो विद टाइम ये प्रेशर जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये जो सेल्स है इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है, सो इट लेड टू द कि जो आपका ऊपर का जो प्लेट है, प्लेट क्या होते हैं उसके कारण प्रेशर के कारण खिंच जाते हैं, ठीक है। सो वो पर्टिकुलरली ये प्लेट, दिस प्लेट स्ट्रेच्ड, तो ये प्लेट क्या होगा, धीरे धीरे ये स्ट्रेच होगा लाइक दिस, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होंगे, धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप होंगे, और क्रैक डेवलप होने के बाद क्या होंगे, ये प्लेट्स विल ब्रोकन अप इनटू द टू हाफ्स, ठीक है। सो ये तो क्या होगा, अर्लियर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इफ आई ड्रॉ द 3D टाइप ऑफ थिंग, अगर इसका मैं आपको दूसरा प्रोजेक्शन दिखाता हूँ, सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जो है कुछ ऐसा, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर ये वाला जो चीज़ें हैं, ये वाला ये नीचे की ओर धंस जाएगा, ठीक है। सो नीचे की ओर धंस जाएगा अगेन, तो ये जो नीचे वाला जो धंसा हुआ एरिया है, ये वाला दिस एरिया, और वो क्या हो रहा है, सब्सिडाइज होकर नीचे चला गया। तो इस वाले पर्टिकुलर एरिया में जो पहले अर्लियर लैंड था उसके ऊपर बहुत सारे वेजिटेशंस थे, ठीक है। तो इस लैंड के ऊपर पहले कुछ वेजिटेशन रहे होंगे, यहाँ पे जब अर्लियर यहाँ पर जब लैंड था तो यहाँ बहुत सारे पौधे वगैरह रहे होंगे, एंड दिस ऑल वेजिटेशन गोज बीनीथ दिस पर्टिकुलर लैंड एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे जो भी होते हैं वो सारे के सारे किसके नीचे चले गए, आपके लैंड के नीचे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक रिफ्टिंग हुआ दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो आपका रिफ्टिंग एरियाज विल सो आई विल शो इन दिस पर्टिकुलर मैप, आपका कहाँ कहाँ पे रिफ्टिंग हुआ, दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग। तो ये आपका आई ड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लैक मार्कर, तो आपको समझ आया उससे। तो ये आपका एक रिफ्टिंग हुआ, दिस पर्टिकुलर रिफ्टिंग एरिया, ये धंसा हुआ जमीन है। अगेन विल सी द रिफ्टिंग एरिया हियर लाइक दिस, विल सी द रिफ्टिंग एरिया लाइक दिस पर्टिकुलर, ठीक है। विल सी द रिफ्टिंग एरिया यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द इंटेंस प्रेशर ये क्या हुआ, ऐसे छोटे छोटे एरियाज में बनकर वो धंस गए, ठीक है। और ये जो धंसने वाली जमीन थी, लेटर दिस पर्टिकुलर डाउन एरिया आर टेकन अप बाय द रिवर्स, तो उस पूरे एरिया में आपका क्या हुआ, रिवर्स हो गए। सो दिस पर्टिकुलर रिफ्टिंग, ये वाला जो रिफ्टिंग था, दिस रिफ्टिंग, और इसके अंदर आपकी जो रिवर आने लगी उसको क्या क्या कहा गया, दैट पर्टिकुलर रिवर इज योर नर्मदा रिवर एंड दैट पर्टिकुलर रिवर और योर ताप्ती रिवर। तो यहाँ पर नर्मदा एंड ताप्ती, दिस एरिया वाज टुक अप बाय योर सोन रिवर, दिस पर्टिकुलर बाय योर दामोदर रिवर। यहाँ पर भी आपको एक और देखने को मिलेगा, दिस एरिया वी हैव योर महानदी रिवर एंड दिस इज द गोदावरी रिवर। सो इस तरह से क्या होगा, वेरियस रिवर्स विल फ्लो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जो आपका डाउनवर्ड लैंड एरिया है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ रिफ्टिंग वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस रिफ्टिंग जोन्स और द रिफ्टेड एरिया इंक्लूडिंग योर दामोदर वैली, वहाँ पर क्या हो रहा है, धंस कर वो क्या गए, वैली बन गए। सो वी हैव द दामोदर वैली, वी हैव नर्मदा वैली, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ गोदावरी वैली, then we have also the formation of Mahanadi Valley, and also we have the formation of Son Valley. So ये सारे के सारे आपके क्या डेवलप हुए, so earlier we have the formation of this particular mountains, now after the mountains we have the formation of various valleys, ठीक है। तो आपका माउंटेन्स बन गए, आपके बहुत सारे वैलीज आ गए भारत में जो थे। आज का प्रेजेंट अगर जियोलॉजी और आपका पर्टिकुलरली आपका आज का फिजिकल डिवीजन देखेंगे तो विल सी दामोदर, नर्मदा, गोदावरी, महानदी एंड सोन, एंड ऑल दिस एरिया, ये जितने भी एरिया है यहाँ पर क्या हो रहा था, बिकॉज वेजिटेशन गोज बीनीथ अंडरलैंड। और मैंने आपको पहले बताया था जब वेजिटेशन किसी सॉइल के नीचे जाएगा दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड कोल, और उसमें आपका क्या मिलेगा, कोल मिनरल्स मिलेगा। इफ दैट पर्टिकुलर लैंड, अगर यही चीज किसके नीचे जाता, बिलो योर लैंड मास, मतलब आपके ओशियन वाटर या वाटर के नीचे जाता, दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल। तो ये आपके सारे के सारे किसके नीचे गए थे, आपके लैंड के नीचे गए थे, बिकॉज ऑफ दे आर बीनीथ द लैंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स कॉल्ड कोल मिनरल्स। एंड ये पूरे के पूरे सेक्शन को देखेंगे तो इन्हीं सेक्शन में सिर्फ आपको इंडिया में कोल मिलेगा और कहीं कोल नहीं मिलेगा। एंड ऑल द इंपॉर्टेंट कोल वैलीज आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल इन दामोदर वैली वी हैव योर इंपॉर्टेंट कोल माइंस इंक्लूडिंग झरिया कोल माइंस, ओके, वी हैव बोकारो, वी हैव धनबाद, ओके। सो ऑल द कोल फील्ड जो भी आपके झारखंड हैं, आपके जो झारखंड है उड़ीसा वाले रीजन पे, ऑल दिस आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर दामोदर वैली। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर महानदी वैली वी हैव इब वैली, और इब घाटी जो बोलते हैं इब वैली, एंड इब वैली कोलफील्ड। सो इब वैली कोलफील्ड। अगेन इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव सिंगरौली एज वेल,
वी हैव इब वैली कोलफील्ड, वी हैव कोरबा कोलफील्ड जो आपका छत्तीसगढ़ में ही है, कोरबा कोलफील्ड, वी हैव द मांड वैली कोलफील्ड। सो आपके जितने भी ये हैं ये सारे के सारे किस पे आएंगे, महानदी वैलीज पे आएंगे। देन विल सी दिस पर्टिकुलर नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली एंड दिस पर्टिकुलर सोन वैली। तो सोन वैली वी हैव योर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश में अगर आप एंटर करते हैं फ्रॉम कोरिया, सो कोरिया विल सी वेरियस फील्ड्स, कोरिया में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लाइक योर चिरमिरी के अराउंड आपको हसदेव रिवर पे मिलेंगे। सो ऑल दैट कोल फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सोन वैली, तो सोन वैली में भी आगे देखेंगे तो चैचई और चर्चा करके जगह है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल ऑल्सो कम यहाँ पर, ठीक है। सो चर्चा and others, and in the particular Narmada Valley we have your Rava coalfields or Rava coalfields and others, and in this particular Godavari we have Singarani. So अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज अच्छे से हो देन यू डोंट नीड टू रिमेंबर द प्लेसेस नेम, आप ऐसे ही बता दोगे कि कौन सा कहाँ पर आएगा। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस पर्टिकुलर कि आपका क्या चीज़ कैसे बना है, ठीक है। सो वी हैव द दामोदर वैली, वी हैव ऑल द कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया, नर्मदा वी हैव इन योर गोदावरी, वी हैव इन योर महानदी एंड ऑल्सो इन द सोन वैली। तो ये पूरे के पूरे पार्ट में आप क्या देखेंगे, वेरियस कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सो वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ माउंटेन्स, जहाँ पर हमने आपका क्या देखा, माउंटेन्स के फॉर्मेशन देखें। नाउ वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस बेसिन्स एंड द रिवर वैलीज, ठीक है, जो आपके बहुत सारे रिवर वैली और बेसिन्स बने। सो वी हैव सीन द फॉर्मेशन एंड ऑल्सो सम ऑफ द कोल फील्ड जो बाद में बनेंगे, क्योंकि इनिशियली अभी क्या हुआ है वो धसे हैं, बाद में वो कोल फील्ड बनकर आते हैं। सो वी हैव seen all the particular coal fields of India. Now we'll move toward the other section. इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद की कहानी कैसी थी इंडिया की। सो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहले हमारे क्या था, अरावली, सिंहभूम, ये 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट थे। यहाँ से हमका क्या बना, अरावली और वेस्टर्न घाट बना। देन बिकॉज ऑफ द बेसिन डेवलपमेंट, बेसिन आपके बहुत सारे बने थे लाइक बिजावर बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन एंड ऑल, वो बेसिन अपलिफ्टेड एंड इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ सतपुड़ा एंड योर विंध्यन माउंटेन, ये हो गया। देन अगेन दिस पर्टिकुलर सेक्शन मूव्ड, वो आपका मूव करने लगा यूरेशियन प्लेट की ओर। देन जब वो मूव कर रहा था तो अगेन दिस ट्रिपल जंक्शन गेट एक्टिवेटेड एंड वहाँ एक्टिव होने के कारण बहुत सारे क्या हुए, वी हैव सीन द रिफ्टिंग एंड रिफ्टिंग लेड टू द योर लैंड गेट बीनीथ योर पर्टिकुलर vegetation get beneath your land and that particular things led to the formation of Gondwana rocks। और उस पूरे के पूरे एरिया में हमारे क्या हुआ, various coal field develops। So we have seen the various river basins initially developed and all the coal fields developed। So we have seen the various mountains and also the various river basin including your Mahanadi river basin, we have seen Godavari, we have seen Son, Narmada and Narmada river basin and Damodar, and in this particular area we have seen the various coal fields, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आपका किस तरह से कोल फील्ड बना। नाउ वी विल सी फर्दर। सो आफ्टर गोंडवाना व्हाट वी हैव द डेक्कन ट्रैप। सो हमारा उसके बाद क्या है, डेक्कन लावा है। सो नाउ आवर इंडिया इज मूविंग फ्रॉम हियर। सो इनिशियली अगर देखा जाए पर्टिकुलरली इफ यू सी द पर्टिकुलर मैप, इस तरह से आपका मैप है। इफ आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर, मैं आपको एक बार और बना के दिखाता हूँ। सो इफ आई सी प्लॉट लाइक दिस इज द अफ्रीका, ठीक है। अगर ये आपका अफ्रीका है तो अफ्रीका एंड हियर इज लाइज योर इंडिया। अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर इंडिया है, दिस इज अफ्रीका। सो अफ्रीका और इंडिया के बीच यहाँ पर अगर देखेंगे तो देयर इज अ हॉट स्पॉट। यहाँ पर क्या था, एक हॉट स्पॉट था। हॉट स्पॉट्स आर नॉट द वॉल्कनोज, दे आर द मेंटल प्लूम्स, ठीक है। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, वॉल्कनो के जैसे नहीं होते, एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया होता है जहाँ से हर समय अगर आप देखेंगे सो थ्रू आउट कभी भी आप देखेंगे तो वहाँ से क्योंकि हल्के फुल्के वहाँ से लावा इरप्शन टेक प्लेस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कंटिन्यूसली लावा इरप्ट होते हैं और वॉल्कनो में क्या होता है, एक साथ होते हैं देन लावा कब हो जाते हैं, ठीक है। बट मेंटल प्लूम्स में क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका लावा का इरप्शन होता है, कंटिन्यूसली आपका इस पर्टिकुलर एरिया से लावा निकलते थे, ठीक है। सो सपोज करते हैं वो आपका रीयूनियन कहीं यहाँ पे था, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर इज योर रीयूनियन हॉट स्पॉट एंड इंडिया। ये जो प्लेट है, ये प्लेट क्या हुआ, ऐसे करके जा रही थी, ठीक है। सो दिस प्लेट मूव्स लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दिस प्लेट इज मूविंग फ्रॉम हियर लाइक दिस। सो इंडियन प्लेट जब यहाँ से मूव कर रही थी तो ये वाला जो सेक्शन है अरावली और ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन, ये सेक्शन कभी ना कभी रीयूनियन के ऊपर से पास हुआ, ठीक है। सो सपोज करते हैं दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखेंगे ये वाले को, तो आपका क्या हो रहा है, इफ दिस इज द रीयूनियन एंड दिस इज द इंडिया, तो इस तरह से इंडिया का ये वाला पार्ट तो निकल गया, ये आपका टच नहीं हुआ। बट दिस पर्टिकुलर सेक्शन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो सेक्शन है ये कभी ना कभी इस रीयूनियन के ऊपर से पास हो रहा था, ओके। सो वंस दिस पर्टिकुलर थिंग पासिंग ओवर द रीयूनियन हॉट स्पॉट लाइक दिस, सपोज दिस इज द पॉइंट, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है एंड दिस इज द प्लेट, this particular part, so this particular part, now this particular part is moving over this, so once it will come here, जब ये इसके ऊपर आएगा
like this, that is moving from here, so sometimes it will come like this, and from this particular point we have the lava eruption. तो इस पॉइंट से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से आपका completely lava eruption हो रहा है, ठीक है. So lava will erupt like this, okay. So this area have the lava eruption once. Now plate will move, plate तो आपकी मूव कर रही है, so this particular point आपका प्लेट क्या हो रहा है, आगे मूव कर गया, तो point will remain there, but now this plate will look like this particular. So here we have already we have the lava eruption. यहाँ पर हमने already lava eruption first time देखा था. So now from this particular जब प्लेट आगे मूव करेगा तो again this area will see the lava eruption like this. एंड ये वाला जो एरिया था पहला वाला, वो उसमें क्या होगा, स्लोप डेवलप हो जाता है, लावा इरप्शन के कारण क्या होगा, एक स्लोप सा बन जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर एरिया अगेन हैव द लावा इरप्शन, यहाँ से स्लोप होने के कारण. सो द फर्स्ट पार्ट, दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट हैज़ द लावा इरप्शन ट्वाइस. अर्लियर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, बट द सेकेंड पार्ट जो आपका ये न्यूली इंट्रोड्यूस पार्ट था, ये वाला, हियर वी हैव द लावा इरप्शन वंस. नाउ लावा फिर आपका क्या होगा, पार्ट आगे मूव करेगा, सो वी विल सी द लावा इरप्शन इन दिस पर्टिकुलर रीजन. यहाँ पर आपका लावा इरप्शन होगा, okay, but in this region we will see the lava eruption second time. So here we will have the lava eruption second times, and in this particular region lava will again go and accumulate. So इस एरिया में क्या होगा, थर्ड टाइम. So this particular things, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर स्टेप साइज और द लैडर स्ट्रक्चर, ठीक है. और ये जो स्टेप जैसा बन रहा है, अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप साइज शेप वी हैव द लावा एक्यूमुलेशन. तो लावा का पूरा उसके अंदर क्या है, एक्यूमुलेटेड है, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग्स इज कॉल्ड एज योर डेक्कन लावा ट्रैप, बिकॉज द लावा इज ट्रैप विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो दिस इज कॉल्ड एज योर डेक्कन ट्रैप. सो ये आपका क्या है, दिस इज द डेक्कन ट्रैप. So after passing from the reunion hot spot, we have the formation of your Deccan trap or the Deccan lava. और Deccan lava के कारण बहुत सारे आपके mountains देखने को मिलेंगे. So this particular thing moves here. कुछ इस तरह से आपका इंडियन प्लेट मूव किया, और this particular section we have the in this section, ये पूरा का पूरे सेक्शन में हमारा क्या है, here we have your Deccan lava, ठीक है. ये पूरा का पूरा डेक्कन लावा एरिया है, एंड दिस लावा एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, अगर देखा जाएगा तो आपका क्या है, महाराष्ट्र प्लेट्यू. विल ऑल्सो फाइंड सम इन योर छत्तीसगढ़ प्लेट्यू. देखो ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है, सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विल ऑल्सो फाइंड इन योर छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ सेक्शन. विल ऑल्सो फाइंड इन योर तेलंगाना प्लेट्यू. सो सम पार्ट इन ऑल्सो इन द तेलंगाना प्लेट्यू. इन अपर पार्ट विल सी दैट इन गुजरात इन योर काठियावाड़, काठियावाड़ प्लेट्यू. ऑल्सो विल सी दिस पर्टिकुलर इन योर, आपका यहाँ पर जो ये चीज़ को हम देख रहे हैं, तो आपका ये और कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, नीचे कर्नाटक प्लेट्यू. सो कर्नाटक प्लेट्यू ऑल्सो है दिस पर्टिकुलर डेक्कन लावा. सो कहीं ना कहीं वहाँ तक आपका पूरा का पूरा डेक्कन लावा फैला हुआ है, ठीक है. सो नाउ वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ योर डेक्कन लावा एंड वेरियस डेक्कन प्लेट्यूज, ठीक है. तो डेक्कन लावा और डेक्कन ट्रैप एज सच, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर डेक्कन लावा का फॉर्मेशन हुआ. नाउ अगेन आपका ये यूरेशियन प्लेट, आई विल ड्रॉ अ बिट लाइक बिट हियर, ताकि और अच्छे से आपको समझ आए. यूरेशियन प्लेट, ठीक है. सो वी हैव द फॉर्मेशन, एंड अगेन विल सी दिस पर्टिकुलर अरावली ईस्टर्न घाट, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस रिवर बेसिन एंड द वेरियस एसोसिएटेड कोल्ड फील्ड. देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डेक्कन लावा. नाउ विल सी अब इसके आगे की जर्नी कैसी थी. सो आफ्टर फ्रॉम डेक्कन लावा टू टर्शरी देयर आर द वेरियस फेसेस. वहाँ पर डेक्कन लावा से टर्शरी के बीच में बहुत सारी, हमारे इंडिया में अगर देखेंगे तो बहुत सारा इवेंट टेक प्लेस हुआ, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर रीजन, ये वाला जो रीजन था, दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर क्या हुआ, अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेशर, तो वो पूरा का पूरा लैंड क्या हुआ, वो सब्सिडाइज हो गया, वो क्या हुआ, जमीन के नीचे चला गया. सो सपोज इफ दिस आर द लैंड, दिस पर्टिकुलर इज द लैंड, ये पूरा का पूरा एक सिंगल लैंड है सपोज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होने के कारण क्या हुआ, ये वाला जो था ब्लू वाला, सपोज ये क्या हुआ, नीचे धंस गया हल्का सा, ठीक है. सो ये वाला जो सेक्शन था इंडिया का, ये वाला सेक्शन, हियर विल सी दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये दिस सेक्शन कम्स सीन लाइक दिस, एंड अगेन वी हैव लाइक दिस. सो ये वाला एरिया, ये वाला जो पूरा कंप्लीट एरिया था, ये वाला हल्का सा, और ये वाला पूरा बड़ा एरिया. सो ऑल दिस एरिया एंड सम पार्ट हियर, ये वाला एरिया, ये क्या हुए, ये धस गए, ठीक है. तो लैंड आपका ये कंप्लीट लैंड था, तो ये वाला जो सेक्शन था, ये पूरा कंप्लीट लैंड था पहले इंडियन. तो ये वाला सेक्शन इफ़ आई ड्रॉ पर्टिकुलरली ऐसा करेंगे तो आपको साथ कन्फ्यूजन हो जाए, तो अब हम ऐसा बनाते हैं इसको, ये पर्टिकुलर था, ठीक है. तो ये वाला आपका क्या हुआ, ये लैंड नीचे चला गया. सिमिलरली अब ये कुछ इस तरह से हो गया,
सो ये वाला भी जो लैंड का एरिया था ये भी क्या हुआ, पूरा का पूरा नीचे चला गया, ठीक है। तो ये पूरा नीचे चला गया एंड अगेन दिस पर्टिकुलर गोज बीनीथ योर ओशन। तो आपका क्या होता, पहले यहाँ लैंड था वो क्या हो गया, ओशन बॉटम में चला गया। इस बॉटम में जाने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, अचानक से कोस्ट डेवलप हो गए, ठीक है, कोस्ट डेवलप होंगे। एंड इफ यू सी, अगर वेस्टर्न कोस्ट, तो वेस्टर्न कोस्ट क्या हो रहे हैं, अगर इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वो क्या थे, पर्टिकुलरली लैंड था और ये लैंड धंस गया। सो बिकॉज द लैंड गेट्स समर्ज्ड विथ योर वाटर, ये समर्जेंस के कारण, ये जो समर्जेंस हो रहा है, दिस पर्टिकुलर वेस्टर्न कोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर सबमर्ज्ड कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पूरे के कौन सा लैंडफॉर्म कब बना, एंड आफ्टर सीइंग ऑल द लैंडफॉर्म्स नाउ विल स्टडी ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म वन बाय वन। एंड अगेन इफ यू सी द लैंडफॉर्म और एसोसिएटेड एज, तो आप ऐसे ही बता दोगे विद द प्रोजेक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन विल कम फाइंड द कौन सा मिनरल कहाँ पर मिल रहा है, तो यू विल नो कि धारवाड़ रॉक्स, वेयर विल फाइंड द धारवाड़ रॉक्स, तो उस जगह पे ही मिलने वाला है। सो विल टॉक अबाउट द कंप्लीट पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड धारवाड़ रॉक्स, ऑल द मिनरल्स आर देयर। इफ द क्वेश्चन कम्स अबाउट द कोल मिनरल्स, यू विल सी द गोंडवाना, एंड गोंडवाना से हमने क्या देखा, कौन कौन से रिवर वैली बने, यू विल से कि यहाँ पर ही कोल मिलेगा। इन धारवाड़ यू विल से यहाँ पर ही हमारा जो है आयरन ओर मिलेगा। इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम ब्लैक सॉइल, सो विल सी द पर्टिकुलर डेक्कन ट्रैप कहाँ पर है, यू विल से कि यहाँ पर है, पर्टिकुलरली मरीन सारे के सारे वहाँ पर दिखेंगे। If you will question come from the tertiary rocks, so you will see this particular coastal areas have the marine transgression, and जहाँ भी marine transgression होगा वहाँ पर क्या होता है, आपके tertiary rock form होते हैं। तो this particular land goes beneath your particular water, तो यहाँ पर आपका marine transgression होगा, marine transgression led to the formation of tertiary rock, और अगर ऊपर land के ऊपर हो रहा है तो वहाँ से हमारा गोंडवाना बनता है। तो ये पूरा एरिया आपका ऑयल फील्ड्स, अगेन हिमालयाज, और इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ असम वी विल फाइंड द वेरियस ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया। आई एम नॉट ड्राइंग द पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडिया एज सच, आपको बस समझाने के लिए था कि जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडिया जो आज आप लोग देख रहे हैं वो किस तरह से बना है, और आपके इंडियन की ज्योग्राफी की जो कंप्लीट, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ योर ज्योग्राफी। सबसे अच्छी बात थी कि ये क्या था, इंडिया का जो आज पर्टिकुलर मैप देख रहे हैं, अलग डिविजन देख रहे हैं, हाउ ऑल द डिवीजन एंड द मैप ऑफ इंडिया इज फॉर्म। So this is all about Vehicle Division, lecture 1, and from next lecture I'll start with your Himalayas as such. So thank you all for listening me, and again I am telling those who want to register, please आप क्या करेंगे, हमको टेलीग्राम प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ कॉल अस और टेक्स्ट अस इन आवर व्हाट्सअप नंबर एज प्रोवाइडेड। आपको ऑलरेडी दे दिया गया था नंबर डिस्क्रिप्शन पे, सो यू कैन कॉल अस, वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।
कौन सा लैंडफॉर्म कब बना, एंड आफ्टर सीइंग ऑल द लैंडफॉर्म्स नाउ विल स्टडी ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म वन बाय वन. एंड अगेन इफ यू सी द लैंडफॉर्म और एसोसिएटेड एज, तो आप ऐसे ही बता दोगे विद द प्रोजेक्शन. अगर आपसे क्वेश्चन विल कम फाइंड द कौन सा मिनरल कहाँ पर मिल रहा है, तो यू विल नो कि धारवाड़ रॉक्स वेयर विल फाइंड द धारवाड़ रॉक्स, तो उस जगह पे ही मिलने वाला है. सो विल टॉक अबाउट द कंप्लीट पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड धारवाड़ रॉक्स, ऑल द मिनरल्स आर देयर. इफ द क्वेश्चन कम्स अबाउट द कोल मिनरल्स, यू विल सी द गोंडवाना, एंड गोंडवाना से हमने क्या देखा, कौन कौन से रिवर वैली बने, यू विल से कि यहाँ पर ही कोल मिलेगा. इन धारवाड़ यू विल से यहाँ पर ही हमारा जो है आयरन ओर मिलेगा. इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम ब्लैक सॉइल, सो विल सी द पर्टिकुलर डेक्कन ट्रैप कहाँ पर है, यू विल से कि यहाँ पर है, पर्टिकुलरली मरीन सारे के सारे वहाँ पर दिखेंगे. इफ यू विल क्वेश्चन कम फ्रॉम द टर्शरी रॉक्स, सो यू विल सी दिस पर्टिकुलर कोस्टल एरियाज हैव द मरीन ट्रांसग्रेशन, एंड जहाँ भी मरीन ट्रांसग्रेशन होगा वहाँ पर क्या होता है, आपके टर्शरी रॉक फॉर्म होते हैं. तो दिस पर्टिकुलर लैंड गोज बीनीथ योर पर्टिकुलर वाटर, तो यहाँ पर आपका मरीन ट्रांसग्रेशन होगा. मरीन ट्रांसग्रेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी रॉक, और अगर ऊपर लैंड के ऊपर हो रहा है तो वहाँ से हमारा गोंडवाना बनता है. तो ये पूरा एरिया आपका ऑयल फील्ड्स, अगेन हिमालयाज, और इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ असम वी विल फाइंड द वेरियस ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया. आई एम नॉट ड्राइंग द पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडिया एज सच, आपको बस समझाने के लिए था कि जो भी हमने पढ़ा है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी थी. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडिया जो आज आप लोग देख रहे हैं वो किस तरह से बना है, और आपके इंडियन की ज्योग्राफी की जो कंप्लीट, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ योर ज्योग्राफी. सबसे अच्छी बात थी कि ये क्या था, इंडिया का जो आज पर्टिकुलर मैप देख रहे हैं, अलग डिविजन देख रहे हैं, हाउ ऑल द डिवीजन एंड द मैप ऑफ इंडिया इज फॉर्म. So this is all about physical division, lecture 1, and from next lecture I will start with your Himalayas as such. So thank you all for listening me, and again I am telling those who want to register, please आप क्या करेंगे, हमको टेलीग्राम प्लीज़ मत करिए, प्लीज़ कॉल अस और टेक्स्ट अस इन आवर व्हाट्सअप नंबर एज प्रोवाइडेड. आपको ऑलरेडी दे दिया गया था नंबर डिस्क्रिप्शन पे, सो यू कैन कॉल अस, वहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.